And like we were telling you about the India alliance and the slow death that's taking place there after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Zedmore tunnel in Sonmarg, Jammu and Kashmir yesterday, India bloc allies are now openly targeting their partner, their ally, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah of the National Conference, because in his speech he praised Prime Minister Modi during the event. Chief Minister Omar had hailed the Prime Minister's commitment to J&K's development and emphasized that recent assembly elections saw no rigging or misuse of authority. Omar Abdullah further touched on the sensitive issue of J&K's statehood, expressing optimism. His comments have gone viral and raised a lot of eyebrows within the opposition camp, with many wondering why Omar Abdullah, beyond the normal cordial confines of a federal relationship and protocol, needed to heap praise on Prime Minister Narendra Modi, a person seen as a nemesis by the India alliance. The foundation for that project was laid, conceived, DPR prepared, money sanctioned. No doubt, when we lost the elections, naturally it was the next government we had to carry forward. They delayed it. I know the tenders were floated, but there were certain objections raised by our senior leader, Digvijay Singh Ji. As far as I remember, he raised certain questions on that tender process, and thereafter tender had to be recalled, re-tendered by this government. So the delay was on their part. Omar Abdullah has taken a historic mandate, 50 seats, for restoration of Article 370. And he is using that mandate to normalize things in the favor of BJP. He is normalizing जो historically उनकी पार्टी ने, उनकी फैमिली ने 1947 से लेकर जो उनने नॉर्मलाइजेशन की है, ऑटोनॉमी को स्क्रैप करके प्राइम मिनिस्टर, सदर रियासत, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन को खत्म करके इरोजन्स जो जम्मू कश्मीर में बिट्रेयल्स हुए हिस्टोरिकली, वही रोल आज इनकी तंजीम को फिर से है और कश्मीरियों को एक वी आर विटनेसिंग, दिस जनरेशन इज विटनेसिंग अ हिस्टोरिक बिट्रेयल व्हिच इज हैपनिंग टुडे एंड उमर साहब इज रनिंग दैट, सुपर हेडिंग दैट प्रोसेस. आज जब समझ में आ गया कि मुझे मेरे मतलब का चीज मिल गया, तब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जैसा कौन है. तो ये उमर अब्दुल्ला को फारूक अब्दुल्ला से सीखना चाहिए. इनके पिताजी ने कभी समझौता नहीं किया, जो बोला बेबाक बोला, कभी दबाव की राजनीति नहीं की. लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को, कांग्रेस पार्टी को भी उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस भी गठबंधन में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ. क्या नरेंद्र मोदी जी की जब उमर अब्दुल्ला तारीफ कर रहे हैं, दिल्ली से दिल मिल गए हैं, तो क्या कांग्रेस सहमत है? अगर कांग्रेस सहमत नहीं है तो कांग्रेस भी उनसे सवाल पूछे उमर अब्दुल्ला से, क्योंकि इस उमर अब्दुल्ला की जीत में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे इंडिया गठबंधन का भी योगदान है. ये तो हकीकत है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की मेहनत के चलते आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त कनेक्टिविटी है. एक्सप्रेस हाईवेज, बड़े बड़े टनल्स का निर्माण, रेल कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में दिल्ली, जम्मू, कटरा से होती हुई श्रीनगर, बारामूला तक रेल जाने वाली है. और इसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के, सीमांत के, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, गांवों में, शहरों में जबरदस्त डेवलपमेंट जो हुई है वो मोदी साहब की देन है. And here's what Omar Abdullah had said during the inauguration of the Zedmore tunnel that has triggered so many of his alliance partners. आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है. 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है. इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए. ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है. And here's what Abdullah Senior, Farooq Abdullah, the father of the Chief Minister, had to say about the India alliance attacks. Take a look at what he said. उमर अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है. और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए. हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलकर चलना है. इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है. हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है. जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ें लड़ाई,
फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे, कैसे उनकी मुश्किलें दूर होंगी। हमारे यहाँ बेकारी इतनी है कि पूछिए मत, बदहाली है। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए। हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ना में इनसे कोई ताल्लुक है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक तरीका है काम करने का, उसमें स्टेट्स की मदद करना सेंटर का फर्ज है। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, जिन्हें लड़ाई लड़नी है वो लड़ लेना।